Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. Now we will start lesson number 5, more KTurtle command. But before starting our today's topic, first we will see what we had done in this lesson. So first we had done the turtle. So what is the turtle? This is the pen is called a turtle. In the turtle program, there is looking what turtle that is known as the pen. Like that, when we want to write in our notebook, so that time we are using the pen. Like that, in the turtle there is in turtle program, KTurtle program, there is looking one turtle. This is known as the pen. So basic command, these also we had done. So forward we are writing FW, backward then BW, turn right TR, turn left TL, direct DIR, then canvas size CS, then canvas color CC, pen width PW, pen color PC, then go when we want to go our turtle, moving the turtle certain place without drawing a line. Without drawing line, turtle want to move, so that time we are writing the go commands. Then SS means spirit show. Then SH means spirit hide. Then reset our turtles. Then CCL means clear screen. Then after center, then we want to come our turtle in the center, so that time we are writing the center. Then font size, we want to change font size of the turtle, so that time we are writing the font size. Then message ask. So when we want to send message and ask to message to anyone, so there is writing first message, then whatever the message we are writing there. This like that, here message, hello friend, how are you? So this like that. And after writing message and we want to ask question to anyone. For example, so when we are writing the ask, so that time we are writing first the $sign. This is known as the container. These are the container. That container is not a number and a अल्फ़ाबेट. दिस इज द सिंबल $. कंटेनर ये अल्फ़ाबेट भी नहीं है और नंबर भी नहीं. दिस इज द सिंबल इज द $. सो कंटेनर दैट $. देन आफ्टर वी विल राइट इन ask, please enter a number. So that time number that like that message input dialog box is coming. Then after we will put number, then we will click on the OK buttons. So these also we had then solving a mathematics sum, these also we had done. Then practical times, these also we had done. Okay, now pen up and pen down, these also we had done. Pen up and pen down means, pen up is the command used to move the turtle to parts of the screen without drawing a line. It is the useful when you want to leave a gap or gaps in the drawing. कुछ हम ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, और हमें क्या करनी है, गैप देने हैं टू लाइंस के बीच में गैप देने. जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, तो नोटबुक में लिखते समय हमने जैसे आई लिखा है, आई के बाद हमें एम लिखना है. सो वी विल पुट द गैप बिटवीन द आई एंड एम. आई और एम के बीच में हम गैप रखेंगे. तो सेम जब हम टर्टल से लाइन ड्रॉ करने, 2 लाइंस के बीच में हमें गैप छोड़नी है, अप साइड में गैप छोड़नी है, तो पेन अप लिखेंगे. पेन अप को शॉर्टकट में लिखा जाता है पीयू लिखेंगे, और उसके बाद जितने जगह के बाद हमें जगह छोड़नी है, गैप छोड़नी है, वो करेंगे. तो ये हो जाएगा, गैप हो जाएगी. एंड पेन डाउन मीन्स PD लिखते हैं, मतलब पेन डाउन, तो हमें नीचे वाले साइड में गैप मिल जाएगी. So these also had done. Then repeat these also had done. So in the repeat, जब अब में क्या करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है. क्या करना है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन्स है, ये ड्रॉ करना है. स्क्वायर को कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं. स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड होते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 साइड ड्रॉ करने हैं.
तो उसको फॉरवर्ड टर्न राइट, फॉरवर्ड टर्न राइट, फॉरवर्ड टर्न राइट, फॉरवर्ड टर्न राइट, ऐसे करने से अच्छा हम क्या लिख देंगे, रिपीट 4, क्योंकि स्क्वायर को कितने लाइंस होती है, 4 लाइंस होते हैं। तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, रिपीट 4, फॉरवर्ड 100 एंड टर्न राइट 90। वो कितने टाइम फॉरवर्ड होगा, 100 टाइम्स, 90 टाइम्स वो टर्न राइट होगा, 100 टाइम फिर से फॉरवर्ड होगा, 90 टाइम्स राइट होगा। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। रिपीट जो होता है, रिपीट जो कमांड होती है उससे क्या होगी, वो लाइन 4 टाइम्स रिपीट होगी। तो सबसे पहले हम रिपीट लिख देंगे 4, देन फॉरवर्ड 100, कितने टाइम्स फॉरवर्ड करना है, 100 टाइम, देन टर्न राइट कितने टाइम्स करना है, 90 टर्न राइट, फिर से फॉरवर्ड, फिर से वो क्या हो जाएगा, टर्न राइट। तो वो कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो इस तरह हमने स्क्वायर को ड्रॉ किया। दिस ऑलरेडी वी हैड डन। देन नेक्स्ट इज द ड्राइंग अ पॉलीगॉन एंड सर्कल। अभी ये हो गया स्क्वायर, अभी हमें पॉलीगॉन्स करना है। सो व्हाट इज द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मीन्स that already we had done in the math class. What is the polygon, all of you know very well. What is the polygon, the figure that have a 3 or more than a side। जो भी शेप्स है, फिगर है जिसको 3 और 3 से ज़्यादा क्या होती है, साइड्स होती, 3 और 3 से ज़्यादा साइड्स होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉलीगॉन्स। 1 easier things do you turtle use? The turtle is draw the different types of polygon. A polygon is the flat closed shape with a least 3 sides and 3 angles. Usually it has a 5 or more. पॉलीगॉन को 3 से ज़्यादा साइड्स होती है, द फ्लैट closed shapes of the least 3 sides. Notice that the order is drawing closed polygon. The turtle has been walked around the edges, evenly turning through 360 degree before the coming back to the center. Since the turtle make an turn for the n side polygon, the size angle of the each turns in the 360 and degree. सो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे कमांड्स दी है। अगर हमें ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, पेंटागॉन्स करना है, हेक्सागॉन्स करना है, सेप्टागॉन्स करना है, ऑक्टागॉन करना है, तो ट्रायंगल को कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रिपीट 3, उसके बाद हम लिखेंगे फॉरवर्ड, कितने टाइम फॉरवर्ड करना है, 100 एंड टर्न राइट 120। देन स्क्वायर 4 साइड होते हैं, रिपीट 4, 100 टर्न राइट 90। देन पेंटागॉन को कितने साइड है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, 100 टर्न 72। देन हेक्सागॉन को 6 साइड है, 160 लिखते हैं। देन सेप्टागॉन को 7। ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है वही लिखना है, हम हमारे मन से भी नंबर्स लिख सकते हैं। देन ऑक्टागॉन को कितने साइड, हाँ, लेकिन ये जो बाहर की साइड्स है वो आपको यही लिखना है। अगर ट्रायंगल निकालना है तो 3 लिखना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना है तो 4 लिखना पड़ेगा, पेंटागॉन निकालना है तो 5, हेक्सागॉन है तो 6, सेप्टागॉन है तो 7 एंड ऑक्टागॉन है तो 8। ये कॉमन हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज द रिपीट 360 फॉरवर्ड 1 टर्न। अगर हमें सर्कल को ड्रॉ करना है तो सर्कल जो होता है हमारा वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने होता है, 360 डिग्री का होता है। तो जब हमें सर्कल निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिपीट 360 फॉरवर्ड 1 एंड टर्न राइट, फॉरवर्ड 1 एंड टर्न राइट। तो ये पूरा हमारा सर्कल आ जाएगा। सो दिस विल डू नाउ, ओके। अभी हम ये करके देखेंगे हमारे कंप्यूटर में, जो मेरे पास लैपटॉप है थे। तो ये सारे हम वहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे। ये 6 एंड 1 इज द 7। सो फर्स्ट इज द ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। सो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल। सो ट्रायंगल हाउ मेनी साइड, ट्रायंगल हैव अ 3 साइड। ट्रायंगल को कितने साइड से, 3 साइड से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट विल ड्रॉ हियर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RE PEAT, रिपीट।
कितने टाइम्स रिपीट करना है? 3। क्या निकालना है हमें? ट्रायंगल निकालना है, तो हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। देन करली ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे FW। देन उसके बाद कितने टाइम्स करना है? 100 टाइम्स। एंड टर्न राइट, राइट कितने टाइम्स करना है? 120 टाइम्स। और हमारा करली ब्रैकेट हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया है। अभी हम क्या करेंगे? रन में जाएंगे। रन में हम स्लो दिखाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे रन करेंगे। तो देखो ये जो हमारा ट्रायंगल है 3 साइड का हो गया है। ये देखो ट्रायंगल हो गया है। अभी इसके बाद अगर मैं CCL करूँगी तो ये क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। देखो अभी रन कर रही हूँ, ट्रायंगल हो गया है। और वो बीच में आके टर्टल हमारा क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। देखो वो क्लियर स्क्रीन हो गया है। CCL लिखते हैं तो हमारी स्क्रीन क्लियर स्क्रीन हो जाती है, तो वहाँ पे हम CCL लिखेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया है। अभी हम सेकंड वाला लिखेंगे, तो रिपीट लिखेंगे, देन 4, देन हम करली ब्रैकेट देंगे। करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे फॉरवर्ड, FW फॉरवर्ड लिखेंगे कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। फॉरवर्ड है 100 टाइम्स। एंड टर्न राइट है हाउ मेनी टाइम्स? टर्न राइट 90 टाइम्स। टर्न राइट कितने टाइम्स है? 90 टाइम। और हम करली ब्रैकेट को कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे अभी रन करूँगी, तो जैसे रन करूँगी देखो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। हाउ मेनी साइड ऑफ द स्क्वायर? स्क्वायर हैव अ 4 साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं CCL लिखूंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। CCL करके मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो टर्टल हमारा घूम रहा है, मतलब ये यहाँ पे साइड है। ये घूम क्यों रहा है? सिर्फ ऑलरेडी लाइन ड्रॉ की है इसलिए। अभी वो क्लियर स्क्रीन हो गया, हमारा टर्टल क्लियर स्क्रीन हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है? पेंटागन। पेंटागन को कितने साइड से? 5, तो यहाँ पे मैंने 4 को कट करके सिर्फ 5 कर दिया है। और बाकी की कमांड सेम है। 90 के जगह पे हम करेंगे 72। 90 के जगह पे हम 72 कर रहे हैं। अभी देखो रन कर रही हो तो यहाँ पे 5 साइड्स आ जाएंगे। लुक एट देयर, 4 एंड 5 हो गया। ये हो गया है हेक्सागन, सॉरी पेंटागन हो गया है। अभी हम ड्रॉ करेंगे हेक्सागन। तो यहाँ पे 5 के जगह पे मैं अभी 6 कर रही हूँ कमांड्स में। टर्न राइट 100 है, फॉरवर्ड 100 है, एंड टर्न राइट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है 60, तो हम यहाँ पे 60 कर देंगे। 60 एंड नाउ आई एम रनिंग दिस वन। तो यहाँ पे 6 साइड आ जाएंगे हेक्सागन के। 1 2 3 देन 4 5 एंड दिस वन इज द 6। सो हेक्सागन को कितने साइड्स आ गए हैं? 6 साइड आ गए। हमारा टर्टल फिर से सेंटर में आ गया। अभी हम सेप्टागन को कितने साइड्स होती है? 7। कितने साइड्स होती है? 7। यहाँ पे 6 को कट करके यहाँ पे 7 दिख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे टर्न फॉरवर्ड में हम लिखेंगे 80 एंड टर्न राइट में हम लिखेंगे 51। और अभी हम क्या करेंगे? इसको रन करेंगे। इसको कितने साइड्स आएंगे? 7, क्योंकि हमने कितने टाइम्स रिपीट किया हुआ है? 7 टाइम्स। ये जो रिपीट कमांड है क्यों यूज़ किया जाता है? वो जो कमांड से रिपीट हो जाएगी उस समय, उतने टाइम तक क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। So this one is the septagon. Septagon have a 4 sides. So this also done. Now we'll write here 8. यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है? ऑक्टागन। ऑक्टागन को कितने साइड्स होते हैं? 8 साइड होते हैं। यहाँ पे 80 के जगह पे अभी हम क्या लिख देंगे? 70 एंड
यहाँ पे हम लिखेंगे 45, जहाँ पे 51 था वहाँ पे हम लिखेंगे 45। और यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगी, रन कर दूँगी। जैसे रन कर दूँगी तो ऑक्टागन है उसको 8 साइड्स आ जाएगी। 2 3 4 5 and 6 7 and 8। तो ये हो गया है 8 साइड। तो ये हो गया हमारा ऑक्टागन। अभी हमें सर्कल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे 360 टाइम्स। कितने टाइम्स रिपीट करेंगे, 360 टाइम्स, क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 टाइम। मतलब हमारा जो सर्कल टर्टल है उसको हमें 360 टाइम उसको टर्न करना पड़ेगा। कितने टाइम, 360 टाइम। और यहाँ पे जो फॉरवर्ड है वहाँ पे हम लिखेंगे 1 एंड टर्न राइट में भी हम लिखेंगे 1, वहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 1। सो अभी हम इसको, हमने स्लो किया था तो थोड़ा सा फास्ट करती हूँ। मतलब ये सर्कल देखो, ये सर्कल हो गया। अगर इसको मैं स्लो करती, 1 मिनट ये होने दो, फिर हम इसको स्लो में करके देखेंगे। अगर इसको मैं स्लो में करूँगी तो वो धीरे धीरे वो क्या होगा, मूव होगा। यहाँ पे देखो मैं स्लो कर रही हूँ, तो ये देखो अभी सर्कल कितना स्लोली मूव हो रहा है। तो जब भी हम रन करेंगे सर्कल को तो यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्पीड में करेंगे। तो देखो अभी फिर से वो फुल स्पीड में हो रहा है। तो इस तरह है हमने सर्कल को ड्रॉ किया। Now next topic, all of you look at here, textbook. Then next is the, in the KTurtle, apart a straight line, diagonal line, circle, can you also draw a full circle in the draw a 360 degree and a semicircle 180। अगर हमें फुल सर्कल निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 360 निकालेंगे। और हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, आधा सर्कल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 180 लिख देंगे। क्या करेंगे, 180 लिख देंगे। It make the circle particular size. The reduce the size of the circle, increase the step of the forward command in the number degree and the turn right commands. Then reduce the numbers repetition, therefore size of the circle. देखो जो सर्कल है उसका साइज हम छोटा मोटा ले सकते हैं। तो अगर हम टर्न 5 है, टर्न राइट 10 15, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल रिपीट 36 फॉरवर्ड 5 एंड टर्न 10। शो द सर्कल इज द स्मॉल साइज। हम यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। 36 लिखेंगे और फॉरवर्ड 5 टाइम्स करेंगे एंड टर्न राइट 10 करेंगे, तो वो जो सर्कल है वो छोटा आ जाएगा। तो ये हम करके देखेंगे। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। तो यहाँ पे हमने रिपीट लिख दिया है और यहाँ पे अभी हमने 360 लिखा था। यहाँ पे जो हमने 360 लिखा था उसको कट करके, यहाँ पे जो 360 लिखा था उसको कट करके मैंने 36 लिख दिया है। और हमें फॉरवर्ड कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है। एंड देन आफ्टर हमें फॉरवर्ड हो गया है। अभी टर्न राइट कितने टाइम्स करना है, हमें 10 टाइम्स करना है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। और अभी हम इसको देखो सर्कल कितने फास्ट आ गए। अभी इसको हम स्लो करके देख सकते हैं। देखो स्लो करेंगे और रन करेंगे तो वो धीरे धीरे आ रहा है। देन नाउ हम फिर से फास्ट करेंगे। देखो तो वो सर्कल कैसे हो गया है, छोटा हो गया है। तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ कमांड दिया है, शो द सर्कल स्मॉल साइज। अगर हमारे सर्कल को क्या करना है, स्मॉल साइज का ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने 36 में 36 लिए थे, छोटा सर्कल निकाला था, तब वहाँ पे 36 था तो हमने फॉरवर्ड 5 टाइम्स किया था एंड टर्न
10 किया था। अगर हमें 72 थोड़ा सा बड़ा निकालना है तो हम टर्न कितना करेंगे, 5 करेंगे। 36 है तो टर्न 10 करेंगे। 24 है तो टर्न 15 करेंगे। 18 है तो टर्न 20। 12 मतलब छोटा निकालना है तो टर्न 30 करेंगे। एंड 9 निकालना है तो टर्न 40 करेंगे। टर्न कितने करेंगे, 40 करेंगे। देन 6 छोटा निकालना है तो टर्न राइट करेंगे 60। देन 4 टर्न 90। देन 3 टर्न 120, 2 120 एंड 1 360। तो 1 2 3 4 6 है और यहाँ पे 9 12 18 24 36 था। तो इतने हमें अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें राइट कितने टाइम्स लेना है, राइट वो कितने टाइम्स लेना है वो भी। शो एज द सर्कल इज द स्मॉल साइज गिवन यूजिंग द नंबर टर्न रिक्वायर्ड इज द मेक फुल सर्कल। फुल सर्कल के लिए कितना रिक्वायर्ड है। but combination TR30 TR40 TR मतलब turn right 30 turn right 40 turn right 60 turn right 90 turn right 100 with a FW commands given in the polygon and turn right 180 and turn right at 360 it is given a straight line। ठीक है, ये हो गया रिपीटेड। अभी है रिपीट इनसाइड द रिपीट इनसाइड रिपीटेड मतलब रिपीट के अंदर और रिपीट मतलब लाइक दैट। अगर हमें कुछ डायग्राम निकालना है, तो रिपीट के अंदर हमें रिपीट और कमांड देनी पड़ेगी। समटाइम वन रिपीट कमांड कैन बी यूज इनसाइड अनदर इज ऑर्डर टू ड्रॉ द डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल रिपीट 36 छोटा सर्कल है 36 लिखेंगे। देन रिपीट 4 कितने टाइम्स रिपीट होगा, वो 4 टाइम्स रिपीट होगा। फॉरवर्ड 100 टर्न राइट 90 उसके बाद टर्न राइट 90। तो ये अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे ये वाली कमांड से उसका यूज करके। तो रिपीट के अंदर क्या है, रिपीट है। रिपीट के अंदर क्या है, रिपीट है। तो हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिपीट लिखा है 36 है। देन उसके बाद 36 है, उसके बाद हम फॉरवर्ड 5 लिखा हुआ है, फॉरवर्ड और टर्न 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 36 और यहाँ पे और हम लिखेंगे, ये हम पहले इरेज कर लेंगे। ठीक है, रिपीट हो गया है, रिपीट होगा 36। उसके बाद हम देंगे करली ब्रैकेट और इसमें फिर से लिखेंगे हम रिपीट। इसके अंदर फिर से हमने क्या लिखा है, रिपीट। देन उसके बाद 4 लिखेंगे, करली ब्रैकेट देंगे फिर से और यहाँ पे लिखेंगे FW फॉरवर्ड। कितने टाइम्स फॉरवर्ड करना है हमें, 100 टाइम्स। कितने टाइम्स फॉरवर्ड करना है, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स फॉरवर्ड हो गया है। देन उसके बाद टर्न राइट कितने टाइम्स करना है, टर्न राइट हम करेंगे 90 टाइम्स। अभी हमारा ये करली ब्रैकेट हम कंप्लीट कर देंगे। अभी इसमें फिर से लिखेंगे टर्न राइट, कितने टाइम्स टर्न राइट करना है, 10 टाइम्स। और फिर से हमारा करली ब्रैकेट हम कंप्लीट कर देंगे। तो अभी इसको हम रन करके देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो क्लियर स्क्रीन है वो निकाल रही हूँ। ठीक है, मतलब आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये देखो, इसको हम रन करें। यहाँ पे क्या आ गया है, सर्कल आ गया जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो क्या हुआ, रिपीट। कितने टाइम्स रिपीट करना है, ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ना, वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 36 टाइम्स। और रिपीट 4 मतलब वहाँ पे क्या 36 रिपीट हो रहा है और क्या रिपीट हो रहा है, 4 लिखा है। 4 मतलब क्या होगा, स्क्वायर। अगर आप देखते उसको स्लोली, उसको मैं रन करती हूँ स्लोली। ठीक है, पहले
CCL करके इसको रन करती हूँ, क्लियर करके दिखाती हूँ आपको, और उसके बाद मैं स्लोली करूँगी। तो स्लोली करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लो करी और रन करूँगी तो देखो स्लो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा, तो स्क्वायर आ जाएंगे। ऐसे कितने स्क्वायर हो रहे हैं? 36। कितने स्क्वायर होंगे? 36। देखो फर्स्ट स्क्वायर आ गया है, अभी सेकंड स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपको फास्ट अभी करती हूँ, ठीक है, फुल स्पीड में करूँगी। और क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे एक स्टेप बाय वाला भी ऑप्शन होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये भी क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये भी स्लो होता है। तो इससे बेटर हम क्या करेंगे, फुल स्पीड में करेंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर स्क्वायर होके, और वो स्क्वायर कितने टाइम्स आ गए? 36 टाइम। यहाँ पे देखो हमने 36 लिख दिया है, देन उसके बाद हमने रिपीट लिखा है, रिपीट के बाद फिर से 4 लिखा है, फिर 4 है मतलब वो स्क्वायर आ रहे हैं। और कितने स्क्वायर आ रहे हैं? 30। और जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है? फॉरवर्ड में 100 हो रहे और टर्न राइट में 10 हो रहे, और टर्न कितने हो रहे हैं? टर्न राइट 10 हो रहे। और फिर उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन कर दी है। तो ये जब हमें क्या करना है, हमें रिपीट वाला मतलब कुछ अलग से डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए अगर आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मेक द टर्न वेट। You can notice that the turtle can be very quick in the drawing. The wait commands make the turtle wait for the given period. For the wait x, make a turtle wait x second. हाँ देखो कभी कभी टर्टल आता है वेरी फास्टली वर्क होता है, तो वो क्लियर स्क्रीन जल्दी से चला जाता है। तो हम हमारे टर्टल को वेट करने के लिए भी हम कमांड डाल सकते हैं। ट्राई टू फॉलोइंग कमांड, repeat 36, forward 5 turn and 10 and wait 0.5. The code drawing the circle is turtle half second after the step. This make it the see the turtle moving slowly. अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो टर्टल है वो स्लो कितने वेट करेगा? 0.5 सेकंड तक। तो ये हम करके देखेंगे। तो हम लिखेंगे रिपीट 36, ये पहले मैं इरेज कर रही हूँ, रिपीट 36 हो गया है। उसके बाद हम फॉरवर्ड करेंगे इसको, FW फॉरवर्ड कितने टाइम्स? फॉरवर्ड 5, देन टर्न राइट 10, और अभी लिखेंगे वेट लिखेंगे 0.5 एंड फिर से हम कर्ली ब्रैकेट देंगे। अभी इसको हम रन करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम रन करेंगे तो देखो हमारा जो टर्टल है वो थोड़ा सा स्लोली वर्क कर रहा है, और स्लो करके वो थोड़ा सा टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा, थोड़ा सा स्लोली वर्क कर रहा था, वेट कर रहा था। क्या कर रहा था? वेट कर रहा था। सो दिस इज द वेटिंग कमांड फॉर द टर्टल। ये क्या है? टर्टल की वेटिंग कमांड से। ये क्या है? वेटिंग कमांड से। सो दिस इज अवर लेसन। नाउ प्रैक्टिकल टाइम्स जो दिया है ये आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है तो ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। So this is lesson we had done. Now tricky terms, memory bites and exercise, these we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.